study the blood vascular system of prawn through the chart as given in the video. The blood vascular system of prawn includes many structures as given as 6, of which someone further explained. The 6 structures which includes in the blood vascular system of prawn are: first is the pericardium, second is the heart or also called cardium, third is the arteries, which further describes as median ophthalmic arteries, and second is the antennary arteries in pairs, third is the hepatic arteries also in pair, and fourth is the mid posterior arteries. And the fourth structure of the blood vascular system of prawn is the blood lacunae or sinuses, and fifth structure is the blood channels, and sixth is the blood. So these are some structures which include which explain the blood vascular system of prawn. So we started from pericardium. First we see the structure of the heart. This is the structure of the heart, in which figure number A, B, C is given. A figure is shows the dorsal view, and B is ventral. C shows the lateral view. So in the figure A, we see the namings. On the upper side, the antennary artery is given, and below side anterior-lateral ostium, and then below it posterior ostium, and inside the posterior ostium presented median posterior artery, and in the center of the figure A, the dorsal ostium is given, and in figure B also namings are given. In the upper side, straight upper side, median ophthalmic artery is given in the center. The central artery is median ophthalmic artery, and in the both sides of the median ophthalmic artery, the antennary artery presented, and after antennary artery, on both sides the hepatopancreatic artery presented. And also in the figure B, anterior-lateral ostium is present and ventral ostium presented, and below side the aperture of median posterior artery presented, and next is the posterior-lateral ostium also presented. पोस्टीरियर से लेटरल साइड में जो ऑस्टियम है उसे पोस्टेरो लेटरल ऑस्टियम कहा गया है. इन द फिगर सी ऑल्सो द नेमिंग इज गिवन एज द मीडियन. इट शोज द मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी बिलो साइड and the ventral ostium, and on upper side the posterior lateral ostium and anterior lateral ostium. This is the lateral view. Figure number C is the lateral view of the heart. So we shall start the blood vascular system of prawn. सबसे पहले हम यहाँ चार्ट को समझ लेते हैं. चार्ट में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्राउन के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को समझाया गया कुछ स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिनको अभी बताया गया. 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से जिनको हम डिस्क्राइब किए हुए यहाँ पे थ्रू हेडिंग्स. अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो भी डिस्क्राइब एक हेडिंग को डिस्क्राइब किया जाएगा उसे आप नोट्स की तरह कॉपी कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इन प्रॉन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज़ ओपन टाइप और लैक्यूनर टाइप. ओपन टाइप का क्या मतलब है कि इसमें कैपिलरीज एंड वेन्स नहीं है इसकी बॉडी में. ये इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप या लैक्यूनर टाइप है. इसमें साइनसेज और लैक्यूनाई प्रेजेंटेड होते हैं. इट इज़ पार्टली क्लोज्ड एंड पार्टली ओपन. ये आधा अधूरा क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है. इन दिस टाइप ऑफ ब्लड
वैस्कुलर सिस्टम द कैपिलरीज आर एब्सेंट, यहाँ क्लियर कर दिया है कि ऐसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। सो द ब्लड फ्लो थ्रू ओपन स्पेसेस एज बाई लेक्यूनेई और साइनसेस, इसलिए ब्लड जो है वो ओपनली स्पेसेस में रन करते हैं, फ्लो करते हैं लेक्यूनेई या साइनसेस के द्वारा। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्रॉन इंक्लूड मेनी स्ट्रक्चर्स एज गिवन द 6 structures: pericardium, heart, arteries, blood lacunae, blood channel, and blood. Note: here is a note. What is the note? In this, veins and capillaries are not found in vertebrates. As invertebrates means vertebrates की तरह प्रॉन की बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में वेन्स और कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से पेरिकार्डियम को हेडिंग लेते हुए उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या है कि इन प्रॉन बॉडी इन द बॉडी ऑफ प्रॉन हार्ट लाइज डॉर्सली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरेक्स। प्रॉन की बॉडी में हार्ट डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, इसके पीठ वाले भाग में, डॉर्सल साइड ऊपर वाले हिस्से में, इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरेक्स के पोस्टीरियर और डॉर्सली प्रेजेंट होता है हार्ट। तो इट इज़ आगे देखेंगे, इट इज़ इनक्लोज्ड इन ए लार्ज हीमोसिलिक चैम्बर विच कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये जो इट इनक्लोज्ड इन ए लार्ज हीमोसिलिक चैम्बर, जो प्रॉन का हार्ट है ये एक बड़े हीमोसिलिक चैम्बर में, मतलब कि एक ब्लड से भरा हुआ क्या होता है, तो बोल सकते हैं वहाँ एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर होता है, हीमोसिलिक चैम्बर होते हैं जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसी के अंदर हार्ट प्रेजेंटेड होता है। ऑन द फ्लोर ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के फ्लोर पे जिसमें हार्ट प्रेजेंट है, ए थिन हॉरिजेंटल सेप्टम प्रेजेंट, एक पतली सी हॉरिजेंटल अनुप्रस्थ सेप्टम प्रेजेंट होती है। और द पेरिकार्डियम इज सिचुएटेड जस्ट अबव द गोनड्स एंड हिपेटोपेनक्रियाज। अगर हम बॉडी में देखें प्रॉन के, तो जो द पेरिकार्डियम जो होता है वो सिचुएटेड कहाँ है, तो जस्ट अबव द गोनड्स एंड हिपेटोपेनक्रियाज। देन नेक्स्ट हेडिंग हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ द हार्ट और कार्डियम जिसे कहते हैं। इसके फिगर को अभी हम देख चुके हैं। तो हार्ट के बारे में जान लेते हैं, प्रॉन का हार्ट कैसा होता है। द हार्ट ऑफ प्रॉन इज़ मस्कुलर होता है, मसल्स उसमें होते हैं, एंड समवॉट ट्रायंगुलर शेप में होता है, जैसे कि भी आपने देखा फिगर में। ये फिर से आप फिगर देख लें, दिस इज द शेप ऑफ हार्ट, ट्रायंगुलर शेप है। फिर क्या है कि इट्स एपेक्स पार्ट, अगर हम देखें हार्ट का एपेक्स पार्ट, फिगर नंबर बी में देखेंगे, थोड़ा इसमें नेमिंग्स को क्लियर दिया गया है कि इट्स एपेक्स पार्ट जो है इज़ इन एंटीरियर साइड। इसका जो एपेक्स पार्ट है वो एंटीरियर साइड में दिया गया है, हाँ। एंड द ब्रॉड बेसल पार्ट इज़ इन पोस्टीरियर साइड, माने जो इसका एंटीरियर साइड है उसे एपेक्स बताया गया है, और नीचे की जो ब्रॉड बेसल साइड है दैट इज़ द पोस्टीरियर साइड। इन साइड द पेरिकार्डियम, अगर हम बात करें पेरिकार्डियम के अंदर, द 3 स्ट्रैंड्स कीप द हार्ट इन द फिक्स पोजीशन। अगर हम बात करें पेरिकार्डियम के अंदर, तो हार्ट को 3 स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो फिक्स किए होते हैं, एक फिक्स पोजीशन पर रखे होते हैं। द थिक मस्कुलर वॉल ऑफ हार्ट ऑफ प्रॉन इज परफोरेटेड बाई 5 पेयर्स ऑफ स्लिट्स अपर्चर विच कॉल्ड एज ऑस्टिया। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ है ऑस्टियम मिलेगा। जैसे फिगर नंबर बी में देखेंगे, यहाँ राइट साइड में नीचे की ओर लिखा है पोस्टेरोलैटरल ऑस्टियम, माने पोस्टीरियर साइड में भी है और लेटरल, इसलिए पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड दोनों को लेते हुए पोस्टेरोलैटरल ऑस्टियम बोला गया इसे। तो ये 5 पेयर ऑफ स्लिट्स पाए जाते हैं, दैट इज़ द अपर्चर पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया बोला गया है इसके हार्ट में, थ्रू विच द ब्लड फ्रॉम पेरिकार्डियल साइनस इंटर इनटू द हार्ट। इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड इंटर करता है हार्ट में। दीज 5 पेयर्स ऑफ ऑस्टिया इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट पे प्रेजेंट होता ही है। एज फर्स्ट पेयर लाइज डॉर्सली,
अगर हम देखें इसके डॉर्सल साइड माने पीठ वाले हिस्से पे, तो एक पेयर में प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंटेड होता है क्या, फर्स्ट पेयर ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में, सेकंड पेयर लाइज वेंट्रल साइड में सेकंड पेयर होता है, थर्ड पेयर लाइज पोस्टीरियर जो ब्रॉडर साइड है उधर थर्ड पेयर ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट है, एंड द फोर्थ पेयर ऑफ ऑस्टिया लाइज एंटेरियो लेटरली माने एंटीरियर साइड और लेटरल साइड, एंटेरो लेटरल ऑस्टियम दिखाया गया फिगर नंबर ए और बी के दोनों में दिखाया गया एंटेरो लेटरल ऑस्टियम को, एंड द लास्ट एंड फिफ्थ पेयर जो है ऑस्टिया लाइज होता है प्रेजेंट होता है पोस्टेरोलेटरली जो कि फिगर नंबर बी में राइट साइड नीचे की ओर दिखाया गया पोस्टेरोलेटरल ऑस्टियम। तो ये 5 पेयर ऑफ ऑस्टियम लाइज कहाँ होते हैं ये दिखाया गया है, एंड देन वी स्टडी अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दैट इज द आर्टरीज विच ऑल्सो फर्दर एक्सप्लेन्ड। देन फर्स्ट व्हाट आर आर्टरीज रोल, क्या रोल होता है इसका, कैसा होता है, तो बाई द नैरो ट्यूब लाइक आर्टरीज कैसी हैं, प्रॉन की हार्ट से जो जुड़ी हुई हैं वो नैरो हैं, सक्रिय हैं, ट्यूब लाइक आर्टरीज हैं। द हार्ट पंप ब्लड टू द बॉडी, हार्ट जो है वो बॉडी को ब्लड पंप करता है, ठीक है, इन्हीं ट्यूब लाइक आर्टरीज से। इन प्रॉन में बात करें, प्रॉन में द प्रिंसिपल टाइप ऑफ आर्टरीज आर एज फॉलो, फ्रॉम विच 5 आर्टरीज अराइजेज, माने प्रॉन की बॉडी में मुख्य प्रकार की आर्टरीज जो हैं वो दी गई हैं, जिनमें से 5 आर्टरीज फ्रॉम विच 5 आर्टरीज अराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ हार्ट, माने जिनमें से 5 आर्टरीज एंटीरियर साइड ऑफ हार्ट से अराइज होती हैं, एंड 1 अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ हार्ट। इसे हम देख सकते हैं फिगर से थोड़ा आसानी, फिगर नंबर बी में अगर हम देखें तो ऊपर की ओर 5 आर्टरीज प्रेजेंटेड हैं, जिनमें सेंट्रल आर्टरी की बात करें तो मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, देन ऑन बोथ साइड ऑफ मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी द एंटीनरी आर्टरी इज प्रेजेंटेड, एंड ऑन बोथ द एंटीनरी आर्टरीज on the both side of antenary arteries the hepatopancreatic artery also presented in pair, देख सकते हैं आप यहाँ क्लियर है। तो 5 पेयर ऑफ arteries are presented on, जैसा कि क्या है क्लियर किया गया है, 5 पेयर ऑफ फ्रॉम विच 5 पेयर ऑफ arteries फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ हार्ट के एंटीरियर एंड पे ऊपरी हिस्से को एपेक्स पार्ट को एंटीरियर बोला गया, तो वहाँ से 5 पेयर ऑफ आर्टरीज निकली हुई हैं, एंड वन अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ हार्ट, जो कि फिगर नंबर ए में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ देख सकते हैं निचले हिस्से में मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी दिखाया गया है, ये अराइज हुआ है पोस्टीरियर एंड ऑफ हार्ट से। तो हम देख सकते हैं, अब ये तो हो गया आर्टरीज़ के बारे में। अब आर्टरीज़ को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि अभी यहाँ 5 आर्टरीज़ के बारे में बताया गया। 5 आर्टरीज़ कैसे कौन कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट दिया है मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यहाँ चार्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट है मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सेकंड इज़ द एंटीनरी आर्टरी जो कि पेयर में होती है, देन थर्ड इज़ द हिपैटिक आर्टरी, ये भी पेयर में होती है, अभी दिखाया गया है, और फोर्थ इज़ द मिड पोस्टीरियर आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी ऑल्सो नोन एज हिपैटोपैनक्रिएटिक आर्टरीज, हिपैटिक आर्टरी को हम हिपैटोपैनक्रिएटिक आर्टरीज भी बोल सकते हैं, ये पेयर्स में पाए जाते हैं। तो इनको भी यहाँ हम चार्ट बना लेंगे, थोड़ी आसानी होगी, इनको भी हम फिगर से देख लेते हैं। अब क्योंकि अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक आर्टरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम फिगर नंबर बी में जो ऊपर की ओर सेंटर में ऊपर से मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो दी हुई है एपेक्स साइड में, इसके एंटीरियर साइड में, उसे हम देखेंगे। मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि ये मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी और मीडियन सिफेलिक आर्टरी, इसे मीडियन सिफेलिक आर्टरी भी कहते हैं, अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ हार्ट के एपेक्स से अराइज हो रहा है, विच रन मिड डॉर्सली, ये रन कहाँ कर रहा है, तो मिड डॉर्सली, डॉर्सल साइड से बीचों बीच रन करता है। इसे हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इस फिगर के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हैं नेमिंग्स में पेंसिल के द्वारा नंबर 1 नोटेड किया गया है यहाँ सेंटर में,
ऑप्थेल्मिक जहाँ लिखा गया ऑप्थेल्मिक ये ऑप्थेल्मिक मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये अराइज हो रहा है कहाँ से, एपेक्स ऑफ हार्ट का एक हार्ट के एपेक्स पार्ट को दिखाया गया है। यहाँ हार्ट को आप देख सकते हैं, जो कि हार्ट यहाँ दिखाया गया है, ट्रायंगुलर शेप आप देख सकते हैं यहाँ हार्ट का बनाया गया है। तो यहीं से इसके एपेक्स पार्ट से ऑप्थेल्मिक आर्टरी अराइज हो रही है। ए मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ हार्ट से अराइज हो रहा है, विच रन मिड डॉर्सली अलॉन्ग द रीनल सैक फॉर सप्लाई द ब्लड इनटू द कार्डियक स्टमक, ओइसोफेगस एंड हेड। कहाँ से अराइज हो रहा है ये, मिड डॉर्सली रन कर रहा है, डॉर्सल साइड से पीठ वाले भाग से बीचों बीच रन कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं फिगर में, ये रन कर रहा है और कार्डियक स्टमक में ब्लड को सप्लाई करता है, ओइसोफेगस में ब्लड सप्लाई करता है और हेड में भी ब्लड सप्लाई करता है प्रॉन के। एबव दी ओइसोफेगस के पास थोड़ा ऊपर जाने पर ये ज्वाइन हो जाता है, इट ज्वाइन विद द टू एंटीनरी आर्टरीज। आगे आके आप देख सकते हैं ये ऑप्थेल्मिक आर्टरीज जब लेफ्ट साइड में इसके रन करेंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ, तो यहाँ टू आर्टरीज के साथ ये जुड़ जा रही है। ये दो एंटीनरी आर्टरीज हैं, एंटीनरी आर्टरीज, जैसे कि अभी आप फिगर के हार्ट वाली फिगर में देख रहे थे कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बोथ साइड में एक एक एंटीनरी आर्टरीज जो थी वो प्रेजेंटेड थी। तो वही एंटीनरी आर्टरीज को यहाँ जो है ब्रॉड फिगर में समझाया जा रहा है। ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये दो एंटीनरी आर्टरीज से आके जुड़ जा रही है। कहाँ पे जुड़ रही है, तो एबव दी ओइसोफेगस के ऊपर इट ज्वाइन, ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो ज्वाइन हो जा रही है विथ टू एंटीनरी आर्टरीज। तो ये था मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट जो कि अभी चार्ट में हमने देखा था एंटीनरी आर्टरी के बारे में। तो एंटीनरी आर्टरी को भी यहाँ देख सकते हैं फिगर में पेंसिल से पॉइंट 2 दिया गया है सर्कल करके। एंटीनरी आर्टरी आप देख लिए होंगे यहाँ नीचे के साइड में। तो ए पेयर, एंटीनरी आर्टरी में क्या है कि ये पेयर ऑफ लेटरल सिफेलिक और एंटीनरी आर्टरी, इसे लेटरल सिफेलिक या एंटीनरी आर्टरी भी कहते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ एंटीनरी आर्टरी ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देखे थे कि ये हार्ट के एपेक्स से ही अराइज हुआ था एंटीनरी आर्टरी। फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं यहाँ एंटीनरी आर्टरी अराइज हुआ था। फिर क्या हो रहा है कि ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ हार्ट के एपेक्स से अराइज होता है, विच प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट है प्रत्येक साइड में। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के सेंटर में जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी पाया गया है उसके प्रत्येक साइड में, जैसे कि अभी बताया गया था, ईच साइड में प्रेजेंटेड होता है। एंड एंटीनरी आर्टरी जो है वो सेंड करता है, एंटीनरी आर्टरी सेंड ए पेरिकार्डियल ब्रांच, ए गैस्ट्रिक ब्रांच एंड ए मैंडिबुलर ब्रांच। ये पेरिकार्डियल ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच भी क्या करता है, सेंड करता है। जैसा कि आप एंटीनरी आर्टरी को अगर इसके साथ आर्टरी के साथ साथ आगे की ओर आएँ तो एक ब्रांच निकली हुई है, नीचे की ओर नेमिंग दिया गया है गैस्ट्रिक, फिर और आगे आएंगे तो दिया गया है नेमिंग मैंडिबुलर। हाँ, और क्या है, तो ये गैस्ट्रिक ब्रांच भी निकालता है। तो इस तरीके से आप फिगर को देख के समझ सकते हैं। फिगर में बिल्कुल ही क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। एंटीनरी आर्टरी के साथ साथ आएंगे तो गैस्ट्रिक है, और क्या है, मैंडिबुलर ब्रांच है। ये दोनों ब्रांचेस दिखाए गए हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हम देखते हैं इनटू डॉर्सल ब्रांच। अच्छा, एंटीनरी आर्टरी जो सेंड कहाँ कर रही है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। एंटीनरी आर्टरी सेंड ए पेरिकार्डियल ब्रांच, देख सकते हैं यहाँ पेरिकार्डियल ब्रांच में जाता है, पेरिकार्डियल ब्रांच को देता है। गैस्ट्रिक ब्रांच भी होती है एक, मैंडिबुलर ब्रांच है, विच फर्दर बाइफुर्केट्स। ये सारे के सारे ब्रांच जो हैं फर्दर बाइफुर्केट्स, फिर से आगे की ओर आके कुछ आगे आके बाइफुर्केट हो जाते हैं। ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, इनटू डॉर्सल ब्रांच एंड वेंट्रल ब्रांच। इनमें भी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, एक डॉर्सल ब्रांच हो जाती है, एक वेंट्रल ब्रांच हो जाती है। वेंट्रल ब्रांच को अगर आप देख सकते हैं तो राइट साइड में ऊपर की ओर जो डॉर्सल ब्रांच है वहाँ आप देख लें, डॉर्सल ब्रांच दिया हुआ है, उसके जस्ट राइट साइड में वेंट्रल ब्रांच दिया हुआ है। ये दोनों ब्रांचेस को डिस्क्राइब किया गया है
एंटीनरी आर्टरी के दो ब्रांचेस को डिस्क्राइब किया गया है। लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर की ओर तो दो ब्रांचेस में टूट जा रहा है, डॉर्सल ब्रांच एंड वेंट्रल ब्रांच में। इट्स वेंट्रल ब्रांच, अगर हम इसके वेंट्रल ब्रांच को फिर देख रहे हैं, वेंट्रल ब्रांच को देखें तो फर्दर डिवाइड्स, फिर से डिवाइड हो जाता है टू सप्लाई इनटू एंटीन्यूल, एंटीनी एंड रीनल ऑर्गन। ये ब्लड ब्लड सप्लाई कहाँ कर रहा है? तो वेंट्रल ब्रांच को आगे की ओर अगर देखें हम इसके तो ये तीन जगह पे बाइफुर्केट्स हुआ है। एक उसमें से जो है एंटीन्यूल को सप्लाई करता है, एक एंटीना को जाता है, और तीसरा रीनल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है वॉइल। जबकि इट्स डॉर्सल ब्रांच, अगर हम इसके डॉर्सल ब्रांच को देखें, डॉर्सल ब्रांच और आगे की ओर आया हुआ है। डॉर्सल ब्रांच को अगर हम देखें, वॉइल इट्स डॉर्सल ब्रांच फॉर्म एन ऑप्टिक आर्टरी, ये एक ऑप्टिक आर्टरी फॉर्म करता है। आगे की ओर ऑप्टिक आर्टरी भी है, ऑप्टिक नाम दिया हुआ है केवल, ऑप्टिक आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड इनटू द आई। ये ऑप्टिक आर्टरी के थ्रू आई में भी ब्लड सप्लाई करता है। कौन? तो डॉर्सल ब्रांच। देन इट बेंड इनवर्ड्स टू मीट विथ इट्स फेलो मीन्स मेंबर। और डॉर्सल ब्रांच जो है वो फिर आगे की ओर रन करता है और अपने ही आके जो एंटीनरी आर्टरी से निकला हुआ एक और मेंबर है, जो कि एक सर्किल लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ आके बना लेते हैं, मिलके अपने मेंबर्स मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो विथ मीडियन ऑप्थेल्मिक टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप लाइक आर्टरी विच कॉल्ड एज सर्कुलस सिफेलिकस। यहाँ सर्किल किया गया है सर्कुलर सिफेलिकस। ये किस, यहाँ देख सकते हैं आप, एरो भी बना हुआ है। ये उस जगह को बोला गया है जहाँ पे पेयर ऑफ एंटीनरी आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी आके मिली हुई हैं। उस जगह को जो सर्कुलर सिफेलिकस बोला गया है, क्योंकि वहाँ एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। इसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। और ये सर्कुलर सिफेलिकस जो है ये क्या कर रहा है? फॉर्म करता है, फॉर्म ए रॉस्ट्रल आर्टरीज। ये एक रॉस्ट्रल आर्टरी निकालता है। रॉस्ट्रल आर्टरी आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, सर्कुलर सिफेलिकस के जस्ट ऊपर रॉस्ट्रल है, इट इज़ द रॉस्ट्रल आर्टरी। ये क्या करता है? ये रॉस्ट्रल आर्टरी फॉर्म कर लेता है सर्कुलर सिफेलिकस फॉर सप्लाई द ब्लड इनटू रॉस्ट्रम, क्योंकि रॉस्ट्रल आर्टरीज से रॉस्ट्रम में ब्लड को सप्लाई कराया जाता है। देन नेक्स्ट आर्टरी इज़ द हिपैटिक आर्टरी और ऑल्सो नोन एज हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरी, जैसा कि यहाँ हम चार्ट में देख सकते हैं। एंटीनरी आर्टरीज में दूसरा पॉइंट था एंटीनरी आर्टरी, जो कि पेयर में था। देन हिपैटिक आर्टरी से हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरी भी कहते हैं, ये भी पेयर में पाए जाते हैं। अब हम हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरी की स्टडी करते हैं। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरी को हम इस फिगर में ढूंढ सकते हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट डाला गया है पेंसिल से, सर्कलिंग की गई है ऊपर की ओर। तो पेयर ऑफ हिपैटिक और हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरीज अराइजेज फ्रॉम द वेंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ हार्ट। हिपैटिक आर्टरी कहाँ से निकली है? तो वेंट्रोलैटरल पार्ट, माने लैटरली तो प्रेजेंटेड है ही, लेकिन वेंट्रोलैटरल माने एंटीनरी पेयर ऑफ बोथ द एंटीनरी आर्टरीज के साइड से हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरीज अराइज हुई हैं, जैसा कि अभी हार्ट में आपने फिगर देखा था। तो ये अराइज कहाँ से? अराइजेज फ्रॉम द वेंट्रोलैटरली पार्ट ऑफ हार्ट विच इज़ प्रेजेंटेड ऑन ईच साइड ऑफ एंटीनरी। प्रत्येक साइड में एंटीनरी आर्टरी के प्रत्येक साइड में एक एक हिपैटिक आर्टरीज प्रेजेंटेड होती हैं। इट प्लंग, दैट इज़ द बेंट डाउनवर्ड्स फॉर सप्लाई द ब्लड इनटू हिपैटोपैनक्रियाज। ये जो हिपैटोपैनक्रियाटिक आर्टरीज होती हैं ये नीचे की ओर बेंड हो जाती हैं और सप्लाई करती हैं ब्लड को हिपैटोपैनक्रियाज में। देन नेक्स्ट आर्टरी की हम बात करेंगे, जो कि लास्ट आर्टरी है मिड पोस्टीरियर, जो कि सिंगल होती है, जैसा कि हार्ट के फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ फिगर नंबर ए में नीचे की ओर दिखाया गया, फिगर नंबर ए के मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी को दिखाया गया है, इसे ही मिड पोस्टीरियर आर्टरी भी कहते हैं। तो इस फिगर को यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रॉड फिगर में यहाँ हार्ट तो आपको दिखाई दे रही होगा, यहाँ ट्रायंगुलर शेप में हार्ट दिया गया है। तो इसके हार्ट से फोर्थ पॉइंट जो सर्कलिंग करके पेंसिल से सर्कलिंग किया गया, फोर्थ पॉइंट मिड पोस्टीरियर, दिस इज द मिड पोस्टीरियर आर्टरी। हम डिटेल में इसे स्टडी करते जाएंगे और फिगर के थ्रू समझते जाएंगे। तो मिड पोस्टीरियर आर्टरी में क्या है कि इट इज़ ए शॉर्ट,
छोटा होता है, एंड स्टाउट, थोड़ा स्टाउट होता है, थोड़ा मोटा होता है। हाँ, स्टाउट आर्टरी विच इज अराइजेज फ्रॉम द पोस्टेरो वेंट्रल सरफेस ऑफ द हार्ट एंड bifurcates into a supraintestinal and sternal arteries। क्या है? शॉर्ट है, स्टाउट आर्टरी है, अराइज कहाँ हो रहा है? पोस्टेरो वेंट्रल, पोस्टीरियर साइड हर्ट के पोस्टीरियर साइड को क्या बोला गया? जो ब्रॉड साइड है हर्ट का, उसे पोस्टीरियर साइड बोला गया है। तो ये पोस्टीरियर साइड से ही निकला हुआ है, ब्रॉड साइड से, और ये हर्ट से निकलने के बाद बाइफुरकेट भी हो रहा है, टूट भी रहा है। किसमें किसमें? तो इनटू ए ब्रांचेस भी इसमें निकल रहे हैं। एक एक ब्रांच है इसका सुप्रा इंटेस्टाइनल, हाँ, जो कि आगे की ओर मिड पोस्टीरियर से हम आगे की ओर आएंगे तो उसी में सुप्रा इंटेस्टाइनल नेमिंग दिया गया है यहाँ पे। एंड एक नीचे की ओर ब्रांच निकल गई है जिसे स्टर्नल आर्टरी बोला गया है। तो इट्स सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। अभी हम केवल सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी के बारे में बात करेंगे, या जिसे डॉर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहा जाता है। ये डॉर्सल साइड में एब्डोमेन में इंटर कर रहा है, प्रॉन के एब्डोमिनल पार्ट में इंटर कर रहा है, इसलिए इसे एब्डोमिनल, डॉर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहते हैं, या सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। तो इट्स सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी रन्स बैकवर्डली, ये पीछे की ओर रन करता है एब्डोमेन की ओर, फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस से होते हुए, ऑफ द मिड गट, मिड गट टू हाइंड गट, मिड गट से हाइंड गट की तरफ मूव करता है। इट सप्लाई द ब्लड इनटू मिड गट एंड डॉर्सल एब्डोमिनल मसल्स, ये मिड गट में और डॉर्सल साइड के एब्डोमिनल मसल्स में भी ब्लड सप्लाई करता है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी। वाइल, जबकि द लार्ज स्टर्नल आर्टरी, अब हम आएंगे स्टर्नल आर्टरी पे, जो कि दूसरी ब्रांच है मिड पोस्टीरियर आर्टरीज की। तो जबकि द लार्ज स्टर्नल आर्टरी, स्टर्नल आर्टरी क्या है? लार्ज है। द लार्ज स्टर्नल आर्टरी ऑफ मिड पोस्टीरियर इज रन्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर रन किया हुआ है, देख सकते हैं फिगर में, बाई हिपेटोपेनक्रियाज, हिपेटोपेनक्रियाज के थ्रू नीचे की ओर रन किया हुआ है। और द स्टर्नल आर्टरी पासेस थ्रू एन अपर्चर, स्टर्नल आर्टरी को देख सकते हैं यहाँ एक अपर्चर के थ्रू पास हुआ है। एंड डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेज, एक अपर्चर के थ्रू पास होते ही ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया है, एज वेंट्रल थोरेसिक, वेंट्रल थोरेसिक, ये जो अपर्चर दिखाया गया यहाँ इस फिगर में क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है, थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास का एक अपर्चर है, उससे पास होते ही जो स्टर्नल आर्टरीज हैं ये दो ब्रांचेस में टूट गई हैं, एक वेंट्रल थोरेसिक और एक वेंट्रल एब्डोमिनल। तो द वेंट्रल थोरेसिक जो है, द वेंट्रल थोरेसिक रन कहाँ कर रहा है? एंटीरियरली, एंटीरियर साइड में रन कर रहा है। एंटीरियर साइड किसे कहेंगे? जो हर्ट को हम देख के समझ सकते हैं कि किधर एंटीरियर साइड है, किधर पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड वो है जिधर हेड हर्ट का एपेक्स पार्ट है, और पोस्टीरियर वो है जो जिधर हर्ट का ब्रॉडर पार्ट है, बेसल पार्ट है। तो वेंट्रल थोरेसिक रन्स एंटीरियरली अप टू माउथ, इस प्रॉन के माउथ तक चला जाता है, टू सप्लाई द ब्लड इनटू स्टर्नल रीजन में ब्लड देता है। एज इन फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ दे रहा है? एज इन फर्स्ट 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, वॉकिंग लेग्स के फर्स्ट 3 पेयर्स में ब्लड सप्लाई करता है। मैग्जिल्यूली में ब्लड सप्लाई करता है, मैग्जिली, इन मैग्जिली, ओइसोफेगस, गोनड्स, इट्सेट्रा, इन चीज़ों में वेंट्रल थोरेसिक ब्लड सप्लाई कर रहा है। कहाँ कहाँ? तो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग, मैग्जिली, ओइसोफेगस एंड गोनड्स। हाँ, वॉइल, जबकि अगर हम बात करें वेंट्रल एब्डोमिनल की, तो वॉइल द वेंट्रल एब्डोमिनल सप्लाई द ब्लड इनटू वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन, एज इन लास्ट 2 पेयर ऑफ लेग्स, प्लियोपोड्स, यूरोपोड्स, हाइंड गट एंड इन एनस। वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है? तो लास्ट 2 पेयर ऑफ लेग्स में, प्लियोपोड में, यूरोपोड्स, हाइंड गट एंड इन एनस इट्सेट्रा। तो ये था हमारा आर्टरीज के बारे में। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे कि जो आर्टरीज हैं उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो फिर हम आते हैं अपने चार्ट पे। यहाँ हम ब्लड वेसल सिस्टम के चार्ट में जो थर्ड स्ट्रक्चर था आर्टरी, उसकी स्टडी कर रहे थे। अब हम फोर्थ स्ट्रक्चर पे आते हैं, दैट इज़ द ब्लड लेक्यूनाई। ब्लड लेक्यूनाई, या इसे साइनसेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इन प्रॉन, ब्लड लेक्यूनाई हेडिंग को अगर लें तो इसमें डिस्क्राइब किया गया कि इन प्रॉन द हार्ट एंड आर्टरीज, प्रॉन में हार्ट और आर्टरीज जो होती हैं ये कंबाइंस होती हैं। द हार्ट एंड आर्टरीज आर कंबाइंस
फॉर ब्लड सर्कुलेशन, किस लिए कंबाइन होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए कंबाइंड होती हैं। फर्दर द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज, आगे की ओर आर्टरीज से ब्लड बाई आर्टरियल ब्रांचेस के थ्रू रीचेस टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के विभिन्न अंगों में चले जाते हैं। द माइन्यूट आर्टरियल ब्रांचेस ओपन इनटू ब्लड साइनस, बहुत ही सूक्ष्म आर्टरी के जो ब्रांच होते हैं ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, तो ब्लड के साइनसेस में, या जिसे लैक्यूनेई बोला गया है, उनमें ओपन होते हैं। विच इज़ द पार्ट ऑफ हीमोसील, जो कि हीमोसील का पार्ट होता है। हीमोसील किसे बोला गया था, तो पेरिकार्डियम को हीमोसील भी कहा गया था। ये हीमोसील का एक पार्ट होता है, वो पार्ट होता है एक। ऑल दी साइनसेस, सारे जो साइनसेस होते हैं, ब्लड साइनसेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉन आर मीट टुगेदर, ये सारे साइनसेस एक दूसरे से आके मिल जाते हैं टू फॉर्म द वेंट्रल साइनस, और फॉर्म करते हैं, ये वेंट्रल साइनस को फॉर्म करते हैं। विच इज़ प्रेजेंटेड बिलो दी हिपेटोपेनक्रियाज, जो हिपेटोपेनक्रियाज के जस्ट नीचे पाया जाता है। एंड ऑन द फ्लोर ऑफ थोरेक्स, हिपेटोपेनक्रियाज के नीचे और थोरेक्स के फ्लोर के ऊपर, क्लियर है, हिपेटोपेनक्रियाज के नीचे और थोरेक्स के फ्लोर के ऊपर, फ्लोर पे नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर है। इन द बॉडी ऑफ प्रॉन, प्रॉन की बॉडी में द ट्रू कैपिलरीज एंड वेन्स आर एब्सेंट, पहले ही बता दिया गया था कि ट्रू कैपिलरीज और वेन्स प्रॉन की बॉडी में एब्सेंट होती है, इसलिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप बताया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ब्लड चैनल्स को हम देख सकते हैं कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ ब्लड चैनल्स के लिए फेक फिगर दिया हुआ है, ब्लड चैनल इन सिफेलोथोरेक्स। सबसे पहले हम फिगर को देख लेंगे। इसमें ऊपर की ओर से अगर नेमिंग पढ़ते हैं तो पेरिकार्डियल साइनस है, देन इफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स, गिल रूट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स की तरह दिखाया गया है गिल रूट्स। एंड देन एफरेंट ब्रैंकियल चैनल है, वो इफरेंट ब्रैंकियल चैनल से होते हुए ही एफरेंट ब्रैंकियल चैनल बना हुआ है। देन मैक्सिलिपिडीज दिखाई गई है सेकंड एंड थर्ड, और वॉकिंग लेग्स हैं, 5 वॉकिंग लेग्स को डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ करके। तो ये था हमारा ब्लड चैनल्स के बारे में थोड़ी इसकी हेडिंग को कर लें तो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसे। ब्लड चैनल्स आर लैक्यूनर ट्यूब, ये लैक्यूनर ट्यूब होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। विच हैव नॉट ए प्रॉपर वॉल, इनमें कोई प्रॉपर वॉल नहीं होता है। इन प्रॉन की बॉडी में द ब्लड चैनल्स एंड साइनस, इन प्रॉन बॉडी द ब्लड चैनल्स एंड साइनस शो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रॉन की बॉडी में ये जो चैनल्स और साइनसेस हैं यही ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, शो करते हैं, दर्शाते हैं। और द ब्लड जो है फ्रॉम वेंट्रल साइनस, अगर हम बात करें वेंट्रल साइनस से ब्लड जो है कैरी बाई एफरेंट ब्रैंकियल चैनल, आप फिगर में देख सकते हैं कि एफरेंट ब्रैंकियल चैनल जो है वो नीचे की ओर दिया हुआ है राइट साइड में। एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से ब्लड को कैरी किया जाता है, साइनसेस से ब्लड फ्रॉम वेंट्रल साइनस से कैरी बाई एफरेंट ब्रैंकियल चैनल टू द गिल्स, और इनसे फिर गिल्स में ब्लड को भेजा जाता है। वेयर, जहाँ पे इट गेट ऑक्सीजनेटेड, जहाँ ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है गिल में जाने के बाद। और फ्रॉम वाटर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द गिल रूट के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रीच इनटू इफरेंट ब्रैंकियल चैनल, वो इफरेंट ब्रैंकियल चैनल ऊपर से सेकंड नेमिंग को देख सकते हैं, इफरेंट ब्रैंकियल चैनल में रिच हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। विच कन्वे द ब्लड इनटू पेरिकार्डियम, और ये इफरेंट ब्रैंकियल चैनल ही क्या करता है, ब्लड को पेरिकार्डियम में कन्वे कर देता है, ले जाता है। तो ये था हमारा ब्लड चैनल। अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा हेडिंग है ब्लड, तो ब्लड को हम स्टडी करेंगे। ब्लड में क्या है कि प्रॉन का ब्लड होता कैसा है, तो इन द ब्लड ऑफ प्रॉन के ब्लड में, इन द ब्लड ऑफ प्रॉन के ब्लड में हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। सो इट इज़ कलरलेस, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए कलरलेस होता है, थिन होता है, एंड वाटर फ्लूइड लाइक भी होता है। विच कंटेन अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स, इसके ब्लड में अमीबॉइड ल्यूकोसाइट, अमीबा जैसे ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड हैव हीमोसाइनिन एज अ रिस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट
के जैसा ही हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैव द सेम फंक्शन एज हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की तरह ही फंक्शन को करता है। कौन? हीमोसाइनिन प्रेजेंटेड होता है। हीमोसाइनिन बिकम ब्लू व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, हीमोसाइनिन जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ब्लू हो जाता है। तो ये था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्रॉन। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, प्रॉन के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम स्टडी कर लिए। अब इसको थोड़ा इसकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, इसे हम इस जो चार्ट बना हुआ है ये फिगर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है फिगर कि ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, कैसे होता है, इसे हम देखेंगे। तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर ब्लैकिश शेडेड हर्ट दिखाया गया है। इसमें हर्ट जो होता है, द हर्ट बाय मीन्स ऑफ इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, माने हर्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्सेस ब्लड को फोर्स मिलता है, ब्लड पे फोर्स लगता है थ्रू द आर्टरीज से, आर्टरीज के थ्रू होके जाता है और टू ऑल द पार्ट्स, माने रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का होता है और फिर ब्लड जो है वो विद फोर्स थ्रू आर्टरीज ऑल द बॉडी पार्ट्स में चली जाती हैं। बिफोर बीइंग रिटर्न टू द हार्ट में फिर से आने से पहले द ब्लड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गिल, और हार्ट में दोबारा आने से पहले ब्लड जो है वो गिल्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड ब्लड साइनसेस में। द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑफ प्रॉन कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 25, इस फिगर के थ्रू दर्शाया गया है कैसे। तो ब्लड अगर हम देखें ऊपर की ओर हार्ट में अगर प्रेजेंटेड है ब्लड, इफ ब्लड इज प्रेजेंटेड इन द हार्ट देन फ्रॉम हार्ट थ्रू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड फ्रॉम हार्ट पास्ड इनटू आर्टरीज में चला आता है, देन फ्रॉम आर्टरीज टू द आर्टरियल ब्रांचेज टू वेसरा एंड अपेंडिसेस, आर्टरियल ब्रांचेज में और से वेसराज में और अपेंडिसेस में चले जाते हैं। फिर आर्टरियल ब्रांचेस से ब्लड लैक्यूनेई ऑफ हीमोसील वाले ब्लड लैक्यूनेई में चले जाते हैं और फिर ब्लड लैक्यूनेई से वेंट्रल साइनसेस में चले जाते हैं। इनको टोटली लैक्यूनेई यहाँ डिस्क्राइब किया गया, इनको टोटली हम लैक्यूनेई भी कह सकते हैं, लेकिन अब फिगर अगर चार्ट बनाएंगे तो पूरे नेमिंग्स को क्लियरली लिखना ज़रूरी होता है। देन फ्रॉम वेंट्रल साइनस, और वेंट्रल साइनस से ब्लड कहाँ आ रहा है, तो एफरेंट ब्रैंकियल चैनल। ये वेंट्रल साइनस क्या है, तो नीचे की ओर जो बॉडी में साइनसेस पाए जाते हैं वो वेंट्रल साइनसेस हैं। वेंट्रल साइनसेस से एफरेंट ब्रैंकियल चैनल में आएगा ब्लड, जो कि क्या हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें इंटर करता है। फिर उससे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में चला जाता है, जो कि अभी हमने इससे पहले की वीडियो में अच्छे से रिस्पायरेशन की स्टडी की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन में। तो उसमें एक लैडर सिस्टम आया था रेस्पिरेशन का, उसमें ये क्लियरली डिस्क्राइब किया गया था कि एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से ब्लड जो है वो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में आता है। देन इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, देन फिर मार्जिनल चैनल में, फिर देन इसके बाद मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में आता है, देन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल से फाइनली ब्लड इफरेंट ब्रैंकियल चैनल से होके पेरिकार्डियल साइनस में आ जाता है। पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में फिर ब्लड चलाता है, जो कि एक सर्कलिंग कहाँ, गिल में भी कंप्लीट कर लेता है। यहाँ लिखा हुआ है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन गिल, ये 3 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, मार्जिनल चैनल और मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल को मार्क करके दिखाया गया कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन गिल। ये कोर्स जो है वो गिल में होता है और इस तरीके से पूरा होता है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑफ प्रॉन।